Hello dears, welcome to all of you in today lecture. Today in this lecture we will discuss about automation used in manufacturing system. So what is automation or what do you mean by automation? Means automation is a technology concerned with the applications of mechanical, electronic and computer based systems to operate and control production. Means to operate and to control production system we use mechanical engineering aspects, electronic and computer based systems. By using some software of latest technology we operate the production as a automation system. Due to automation we increase the productivity, reduce the investment or increase the quality of the product. So some of the technologies which are used in automation, that are automatic machine tools to process parts. मीन्स कि इन ए ऑटोमेशन जो हम मशीन यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स दे शुड बी ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड. सेकेंड, देर शुड बी ऑटोमेटिक असेंबली मशीन्स. असेंबली पर्पज के लिए भी जो हम मशीन्स यूज कर रहे हैं वो भी ऑटोमेटिक होनी चाहिए. इंडस्ट्रियल रोबोट्स अवेलेबल होना चाहिए. ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम्स का होना जरूरी है. ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सिस्टम to measure the quality or to control the quality system. There should be a proper panel for the feedback control and computer systems for planning, for data collection and decision making to support manufacturing activities. So next is types of automation. There are three types of the automation. Means by the automation system we can produce the products in three systems, in three categories. First is fixed automation, second one is the programmable automation and third one is the flexible automation. So first is fixed automation. Fixed automation is a system in which the sequence of processing or assembly operations is fixed by the equipment configuration. Means बच्चों इन फिक्स ऑटोमेशन द मशीन्स आर फिक्स. जो हमें प्रोडक्ट बनाना है उसका डिजाइन फिक्स है, जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस हैं वो भी हमारे पास फिक्स है. मीन्स बीच में हमारे पास कुछ भी चेंजेस नहीं होगा. द ऑपरेशंस इन द सीक्वेंस आर यूजुअली सिंपल. It is the integration and coordination of many such operations into one piece of equipment that makes the system complex. The features of the fixed automation are high initial investment for custom engineered equipment. Means in case of the fixed automation, initially cost आपके पास high होगी, आफ्टर दैट आपके पास जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी. बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपको बार बार मशीन्स को रीसेट करने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है या एनी पैरामीटर को चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो द प्रोडक्शन रेट इज हाई ड्यू टू नो इंटरप्शन या नो वेस्टेज ऑफ द टाइम फॉर चेंज ओवर्स. कोई चेंज ओवर्स नहीं होता है यहाँ पर, कोई टाइम वेस्टेज नहीं होगा, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो भी हाई होगा. नेक्स्ट इज रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल इन अकोमोडेटिंग प्रोडक्ट चेंजेस. हाँ, ये जो फिक्स ऑटोमेशन है ये इनफ्लेक्सिबल होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम वहाँ पर एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट मीन्स अगर डिजाइन प्रोडक्ट के डिजाइन में अगर चेंज करना चाहते हैं तो हमें जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है वो भी चेंज करना पड़ेगा, जिसमें आपका काफ़ी टाइम लग सकता है, चेंज ओवर्स में टाइम लग सकता है. मीन्स मशीन्स आपको चेंज करनी पड़ सकती है, पैरामीटर्स आपको चेंज करने पड़ सकते हैं. सो द फिक्स ऑटोमेशन इज इनफ्लेक्सिबल इन अकोमोडेटिंग प्रोडक्ट चेंजेस. Now our next is programmable automation. In programmable automation, the production equipment is designed with the capability to change the sequence of operation to accommodate different product configuration. Means in programmable automation के अंदर
हम एक प्रोग्राम्स के थ्रू मशीन्स को ऑपरेट करा रहे हैं, तो हम जब चाहे अपने प्रोग्राम्स को चेंज कर सकते हैं और उसे मशीन कंट्रोल यूनिट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम चाहे तो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के अंदर भी एडिट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड्स। New programs can be prepared and entered into the equipment for produce new products. So some of the features of the programmable automations are high investment, second is low production rate, बिकॉज क्योंकि डिजाइन चेंज करने के लिए आपको सिस्टम को इंटरप्ट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, प्रोग्राम को रीडिजाइन करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन जो रेट होगा एज कम्पेयर टू द फिक्स ऑटोमेशन वो हमारा लो होगा। फ्लेक्सिबल है टू डील विद द चेंजेस इन प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, हम जब चाहे अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। एंड मोर सूटेबल फॉर द बैच प्रोडक्शन, मीन्स स्मॉल नंबर या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पीस प्रोड्यूस करने के लिए जो अपना प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है वो मोस्ट सूटेबल है। लेकिन अगर अपन बात करें फॉर द मास प्रोडक्शन तो मीन्स दिस इज नॉट फ्लेक्सिबल। Our third one is the flexible automation. फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन एक प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का मॉडिफिकेशन या इम्प्रूव्ड ऑटोमेशन सिस्टम ही है। सो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। बिकॉज प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का एक डिसएडवांटेज था, ड्रॉबैक था कि दिस इज नॉट फ्लेक्सिबल फॉर द मास प्रोडक्शन। मीन्स अगर हमें नंबर ऑफ बैचेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो चेंज ओवर्स के लिए, मशीन सेटिंग के लिए, जहाँ अपने पास सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन सेट करने के लिए काफ़ी हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होता है। बट विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन वी कैन रिड्यूस द टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है ये जस्ट 15-20 सालों से यूज होने लगा है, ठीक है। तो ए फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन सिस्टम इज वन दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद वर्चुअली नो टाइम लॉस्ट फॉर चेंज ओवर्स फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू द नेक्स्ट। देयर इज नो प्रोडक्शन टाइम लॉस्ट व्हाइल प्रोग्रामिंग द सिस्टम एंड अल्टरिंग द फिजिकल सेटअप, जैसे टूल्स को चेंज करना है, पिक्चर्स को चेंज करना है, मशीन्स की सेटिंग को चेंज करना है, etc. So the features of the flexible automations are high investment, continuous production for variable mixture of products, and medium production rate, flexible to deal with product design variation. हम जब चाहें एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना डिजाइन चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम को रिमोडिफाई कर सकते हैं, लाइक दैट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन फॉर ऑटोमेटिक, मीन्स ऑटोमेटिंग की क्या जरूरत पड़ी, व्हाट आर द रीजन्स। So there are the some reasons that is increase productivity. To increase the productivity we use automation system because automation reduce the time of manufacturing, या फिर इन्वेंट्री कम करता है, मटेरियल हैंडलिंग अपने पास ऑटोमेटिक होता है, तो ड्यू टू विच जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास हाई कॉस्ट ऑफ लेबर। क्यों? बिफोर ऑटोमेशन, जब ऑटोमेशन नहीं था तो हमें हाई कॉस्ट देना पड़ रहा था लेबर को, बिकॉज क्योंकि स्किल्ड लेबर की रिक्वायर्ड थी अपने पास वहाँ पर, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन जो अपना ह्यूमन जो यूजेज है वो हमने कम कर दिया, हमें हाई स्किल लेबर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका लेबर कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है लेबर शॉर्टेज, क्योंकि पहले सारा काम लेबर के थ्रू होता था तो लेबर शॉर्ट होने की वजह से हम प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते थे। लेकिन विद द यूज ऑफ ऑटोमेशन देयर इज नो नीड ऑफ मोर लेबर्स, ओके, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ लेबर टुवर्ड द सर्विस सेक्टर, मीन्स पहले हमें जो एम्प्लॉय हम हायर कर रहे हैं उन्हें अपने पास ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, मीन्स उसे बताना पड़ता था पूरे सिस्टम्स के बारे में। लेकिन आजकल हमारे पास ऑलरेडी ऑटोमेटिक है, मीन्स स्किल लेबर की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो मीन्स नेक्स्ट है सेफ्टी। विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन द ऑटोमेशन सिस्टम प्रोवाइड सेफ्टी टू द एम्प्लॉय। नेक्स्ट हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। The high cost of raw material in manufacturing results in the need for greater efficiency in using these materials. The reduction of scraps is one of the benefits of automation. Low scrap या low wastage की वजह से हमारे पास हम high cost जो raw materials हैं जिनकी cost बहुत ज़्यादा है उनको great efficiency से हम produce कर सकते हैं। Next, improved product quality. With the help of product automation system, we can improve the quality of the
प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑटोमेशन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग का जो टाइम होगा उस प्रोडक्ट का वो कम होगा, तो विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन वी कैन रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वी कैन रिड्यूस ऑल्सो द इन प्रोसेस इन्वेंट्री। High cost of not automating. A significant competitive advantage is gained by automating a manufacturing plant. The advantage cannot easily be demonstrated on a company's project authorization form. Okay, thank you.